Hello students, we are going to start with page number 19. That is, many a times human body gets attacked by infections or disease, and we have to complete the name of common infections and disease in this puzzle, in this maze. Okay, first one is, this condition occurs due to loss of water from the body. It is known as dehydration. Dehydration occurs when more water and fluids leave the body than enter it. फाइन. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी में से जो वाटर और जो लिक्विड्स हैं वो क्या करेंगे, लीव ज़्यादा करते हैं, मतलब कि क्या करेंगे, हमारी बॉडी में से वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है देन, मतलब जितना हमारे बॉडी में पानी जा रहा है उसी का कहा जाता है डिहाइड्रेशन कहा जाता है. Second one is, it is a condition marked by abnormal growth of cells. It is known as cancer. Cancer is a disease in which some of the body's cell grow uncontrollably and spread from one place to another place in our body. ठीक है, क्या होता है इसमें, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करते हैं और वो क्या करते हैं, इजीली स्प्रेड हो जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमारी बॉडी के. Third one is, it is a disorder of the blood with deficiency in the clotting mechanism. It is known as hemophilia. Hemophilia is mostly inherited genetic disorder. When blood can't clot properly, excessive bleeding, whether it is external or internal, occurs after any injury or damage. इस केस में क्या होता है कि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है, ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है अगर कोई भी क्या हो जाए, इंजरी हो जाए या कोई डैमेज हो जाता है. ठीक है, कहीं पे भी हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो उस केस में क्या होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि ये क्या होता है, हमें पेरेंशियल मिलती है हमें. ठीक है, जेनेटिकल हमें ये ट्रांसफ़र होती है और जिसमें क्या होएगा, ब्लड जो होता है क्लॉट नहीं हो पाता प्रॉपरली. फोर्थ वन इज़, इट इज़ द inflammation of the skin due to an allergy to some food, drug or chemical used. It is called eczema. The main symptom is a rash that typically appears on the arms and behind the knees but can also appear anywhere. ये क्या होता है कि हमारी स्किन पे एलर्जी हो सकती है किसी भी चीज़ से, फूड से, ड्रग से या किसी केमिकल से. ठीक है, तो इसका मेन सिम्टम क्या होता है, रैश होता है जो हमारे आर्म्स पर या नीज़ पर या कहीं और भी दिखाई दे सकता है. One is, it is a respiratory illness that is caused by virus. It is known as influenza. Influenza is also called a flu. It is an infectious disease which affects nose, throat and lungs. Sixth one is, it is a condition where there is partial or complete opacity of the eye lens. It is known as cataract. Cataract is an eye disease where main symptom is blurry vision. Okay, you can't see clearly and you have a blurred vision. It is known as cataract. And the seventh one is, it is an inflammation of a joint or joints. It is known as arthritis. Arthritis, the main symptoms of arthritis are the swelling and tenderness of one or more of our joints. There are more than 100 different types of arthritis. Fine. Eighth one is, it is a highly infectious disease which results in bad throat, headache and watery nose. It is known as colds. Colds are milder than flu. Colds do not result in serious health problems. Okay. Ninth one is, it is the swelling of different parts of organs caused by roundworms. It is known as filariasis. They are spread by blood feeding insects such as black flies and mosquitoes. इस केस में क्या होता है, हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के वो क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, स्वेल्ड हो जाते हैं. ठीक है, और ये किस वजह से होते हैं, ये इंसेक्ट्स की वजह से होते हैं, ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स. ठीक है, जिन्हें के ब्लैक फ्लाइज जैसे कि मॉस्किटोज. ओके. लास्ट वन इज़, इट इज़ अ कंडीशन इन विच स्वेलिंग अकर्स ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन बॉडी टिश्यूज. इट इज़ नोन एज edema. Edema is the swelling caused by excess fluid trapped in body tissues. बॉडी के टिश्यूज़ में क्या होती है, अगर ज़्यादा फ्लूइड चला जाए तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एडीमा कहा जाता है.
Now move to page number 20, that is chemistry of life. The world of science has discovered a lot many things which are useful in our daily life. Given below are some such things. Choose the correct option for the given statements. First one is the balls which we keep in woolen clothes in summer only to protect them from moths and insects. ठीक है, हम क्या करते हैं समर में जब अपने वुलन क्लोथ्स रखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ बॉल्स रख देते हैं, बॉल्स टाइप होती हैं कुछ, ठीक है, वो कपड़े में लपेट के रखते हैं ना मम्मा, ताकि क्या हो जो हमारे कपड़े हैं उस पर मोथ्स और इंसेक्ट्स उसे नुकसान ना पहुंचा सकें. एंड दैट बॉल्स आर मेड अप ऑफ नेफ्थालिन. ठीक है, नेफ्थालिन से वो बॉल्स बनी हुई होती हैं. Second one is the element present in our toothpaste to make our gums healthy. That is fluorine. Fluorine is the element that is present in our toothpaste जो हमारे gums को healthy रखता है. Third one is a chemical used in vinegar. Vinegar is used in the preparation of noodles to enhance its taste. And that chemical is known as acetic acid. Okay. क्या होता है कि जो विनेगर है उसमें केमिकल डलता है, ठीक है, और जो विनेगर है वो किस में डालते हैं, हम नूडल्स को बनाने के लिए हम उसमें विनेगर का यूज़ करते हैं उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और उस एसिड का नाम क्या है, दैट इज़ एसिटिक एसिड. नेक्स्ट वन इज़ अ केमिकल यूज इन नेल पॉलिश रिमूवर्स. जो केमिकल नेल पॉलिश रिमूवर्स में डाला जाता है वो कौन सा होता है, इट इज़ एसीटोन. एसीटोन इज़ अ केमिकल दैट इज़ यूज इन नेल पॉलिश रिमूवर्स. The black shining substance which is used in pencil and is mistaken as lead. उसे क्या कहा जाता है, ग्रेफाइट कहा जाता है. ठीक है, जो पेंसिल्स के अंदर ब्लैक शाइनिंग सब्सटेंस होता है उससे कौन सा होता है, वो ग्रेफाइट होता है, पर उसे मिस्टेकनली क्या सोचा जाता है, लेड है. वो लेड प्रेजेंट नहीं होता, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है. नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ शू पॉलिश. शू पॉलिश बनाने के लिए सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो इस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज कार्बन ब्लैक. सेवन्थ वन इज़ द स्वीटनर यूज बाय डायबिटिक पेशेंट्स इज सैकरिन. सैकरिन इज़ अ शुगर सब्सटीट्यूट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स and it does not affect blood sugar levels as normal sugar does. Next one is a chemical used to remove all the stains from our clothes is ammonia. Ammonia is the chemical that is used to remove all the stains from our clothes. Next one is a known metal used at the top of matchsticks to help the fire to burn. एक ऐसा नॉन मेटल जो मैचस्टिक्स के ऊपर लगा होता है ना, जिससे क्या करते हैं, मैचस्टिक जब हम रब करते हैं तो क्या होती है, फायर बर्न होती है. ठीक है, वो कौन सा सब्सटेंस होता है, इट इज़ फॉस्फोरस. ओके. 10th one is a chemical added in the preparation of cakes to make them soft and spongy. ठीक है, which chemical is used, it is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is the chemical जो केक्स में डाला जाता है उनको सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाने के लिए. नेक्स्ट वन इज़ डू यू नो में है कि नेफ्थलीन इज़ मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल और कोल टार. इट वॉज फर्स्ट रजिस्टर्ड एज अ पेस्टिसाइड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1948. नेफ्थलीन को क्रूड ऑयल या कोल टार से बनाया जाता है. ठीक है, जो क्रूड ऑयल होता है वो क्या होता है, एक नेचुरल रिसोर्स है और विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, एंड जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ से. और उसके आगे क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पेट्रोलियम वगैरह. तो पेट्रोलियम से ही नेफ्थलीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ओके, एंड उसको ही रजिस्टर किया गया था एज अ पेस्टिसाइड की तरह. ठीक है, जिसे क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं. मैंने पहले बताया कि जैसे वुलन क्लोथ्स में हम जो बॉल्स रखते हैं वो नेफ्थलीन की बॉल्स रखते हैं ताकि क्या हो, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मोथ्स एंड इंसेक्ट्स. ठीक है, इसे पेस्टिसाइड का रजिस्टर किया गया था यूनाइटेड स्टेट में इन 1948 में. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 22, दैट इज़ मोबाइल मेनिया. ओके, we have to read the given statements and take the correct choice. First one is these waves are used in mobile phones. As you all know, the radio waves are used in mobile phones. कौन सी waves use होती है, radio waves. Second one is this messaging service is used to send a combination of text, sounds, images and video. It is known as MMS, that is multimedia and messaging service. Okay,
ये कौन सी सर्विस होती है, एमएमएस होती है, जो क्या करती है, यूज़ होती है सेंड करने के लिए, अगर हमें टेक्स्ट, साउंड्स, इमेजेस एंड वीडियो कुछ भी सेंड करना हो। थर्ड वन इज़ दिस इज़ वन ऑफ द वायरलेस ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड डैट कुड रिप्लेस केबल्स बिटवीन लैपटॉप एंड सेल फोन। ठीक है, पहले क्या होता था, हम क्या करते थे, वायर्ड कनेक्शंस का यूज़ करते थे, ठीक है, जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होती थी, केबल्स का यूज़ करते थे लैपटॉप और सेल फोन्स के बीच में। लेकिन अब क्या हो गया है, सब वायरलेस हो गया है। किसकी वजह से वायरलेस हुआ है, ये ब्लूटूथ की वजह से। ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस है जो यूज़ होता है फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए। फोर्थ वन इज़ दिस बैंड अलाउज मोर डाटा टू ट्रेवल फास्टर ओवर द एयरवेज। इट इज़ नोन एज बैंडविड्थ। क्या होती है, इट इज़ द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, इट इज़ अ बैंड या रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो क्या करती हैं, हमें अलाउ करती हैं ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल ओवर द एयरवेज। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ द आइकन, जो तो हमें दिखाया गया आइकन हमें बताना है ऑफन यूज्ड इन मोबाइल रिप्रेजेंट दीज ऑफन रिप्रेजेंट्स मेल आइकन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि हमारी कोई मेल आई है, ठीक है, इसको क्या करेगा, ये आइकन रिप्रेजेंट करता है। मोबाइल फ़ोन में भी यही आइकन रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ये हमारे 19, 20, 21, 22 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं। सो कंप्लीट इन योर बुक्स एंड सेंड द PDF टू मी। ओके, बाय बाय बच्चों।